Hello everyone, welcome to my channel all about fashion. In today's video, we will discuss Indian antique jewelry. The key points or details about Indian antique jewelry that I will cover today are: what is antique jewelry? Second, what was the first Indian jewelry components? Third, history of Indian jewelry. Fourth, Indus Valley, the place where it all began. Fifth, Mughals and their relation with Indian jewelry. Sixth, different antique Indian jewelry styles. Seventh, making process of antique jewelry. Eighth, curing tips for antique jewelry. Now, first let's get to know the styles of antique jewelry that I'll cover in this video. First one, Gulabi Meenakari. Second, Tarakashi. Third, Teva. Fourth, Dokra work. Fifth, Bideri work. Sixth, temple jewelry. Seventh, Kundan. Let's get started. First one, what is antique jewelry? A piece of jewelry should be described as antique jewelry if it is over 100 years old. As jewelry passes over 100 years age mark, it technically become classified as antique jewelry. किसी भी टाइप की ज्वेलरी जो 100 years पुरानी है, 100 साल पुरानी है, उसे हम एंटीक ज्वेलरी कहेंगे. Now, what was first Indian jewelry components? Pebbles, animal skin, shells, threads, crystals, and stones were common component of ancient jewelry. The early humans also employed these material to decorate their body. पेबल, स्किन सेल्स, थ्रेड्स, क्रिस्टल्स, स्टोन्स, ये पहले की एंशियंट टाइम की ज्वेलरीज में यूज़ होते थे. ये स्टार्टिंग में पहले कंपोनेंट थे जो एज अ ज्वेलरी मटेरियल यूज़ किए जाते थे. और जो पुराने टाइम के लोग होते थे वो सिर्फ एज अ ज्वेलरी नहीं, बॉडी को डेकोरेट करने के लिए भी ये एलिमेंट्स यूज़ करते थे. History of Indian jewelry. India is the first country in all Asia to have started making and wearing jewelry. Approximately 5000 years ago, people of the country started developing inquisitiveness about the way they can improve their appearance. इंडिया एशियन कंट्रीज़ में ऐसी पहली कंट्री थी जिसने ज्वेलरी बनाना और पहनना शुरू किया अप्रॉक्सीमेटली 5000 साल पहले. जो पुराने टाइम के इंडियन पीपल थे, जो लोग थे, उन्हें बहुत ही जिज्ञासा होती थी कि वो अपने अपीयरेंस को और अच्छे से कैसे इम्प्रूव करते थे. इसीलिए उन्होंने ज्वेलरी मेकिंग की और अपनी बनाई हुई ज्वेलरी को पहनने की शुरुआत करी. इंडस वैली, द प्लेस वेयर इट ऑल बिगन. द वर्ड ज्वेलरी ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड जोकाल, मीन्स प्लेथिंग. Around 5000 years ago, India was the largest producer and exporter of beads. ज्वेलरी वर्ड ओरिजिनेट होता है लैटिन वर्ड जोकाल से, जिसका मतलब प्लेथिंग होता है. 5000 साल पहले इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर था बीड्स का. The jewelry expert of the civilization made use of gold and some precious stones like turquoise, agate and carnelian and turned them into tubular looking items, giving them some sort of pattern. जो civilization के टाइम पे ज्वेलरी एक्सपर्ट थे, उन्होंने जो भी सारे प्रीशियस स्टोन्स होते थे, गोल्ड फॉर एग्जांपल गोल्ड, एजेट, कार्नियल, टर्कोइज, इनको एक ट्यूबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करी और अलग अलग डिज़ाइन और पैटर्न देने की शुरुआत करी. The individuals belonging to this civilization are considered to be very sophisticated, which was determined by the fact that the jewelry they wore were extremely well engineered with great sense of aesthetics. जो इंडस वैली के लोग थे उस टाइम के, वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होते थे. ये इस बात से पता चलता है क्योंकि जो उस टाइम के लोग जो ज्वेलरी पहनते थे वो बहुत ही वेल इंजीनियर्ड होती थी, डिज़ाइन बहुत अच्छी होती थी और बहुत ही अच्छे एस्थेटिक्स पे बनी होती थी. Next one, Mughals and their relation with the Indian jewelry. India was the primary country to mine diamonds. Mughals reigned in India during the 16th century. They brought along their knowledge and art of jewelry making to the flourishing culture Indians. इंडिया प्राइमरी सोर्स थी, कंट्री थी डायमंड्स के लिए. मुगल्स जो थे वो इंडिया में 16th सेंचुरी में आए और अपने साथ साथ जो ज्वेलरी की नॉलेज थी उनकी ज्वेलरी बनाने की, उसको भी लेके आए और जो इंडियन कल्चर और क्राफ्ट की ज्वेलरी थी उसको और अच्छे से फ्लरिश किया, बनवाया. द इंग्रेविंग ऑफ प्रीशियस स्टोन इन मेटल्स was a technique developed by the Mughal artist. They also used other techniques like enameling and casting to make different type of jewelry. मेटल्स के अंदर जो इंग्रेविंग करी जाती है प्रीशियस स्टोन्स की, इस टेक्निक को मुग़ल आर्टिस्ट ने ही डेवलप किया इंडिया में और अच्छे से,
और उन्होंने अदर टेक्निक्स लाइक इनामलिंग एंड कास्टिंग को भी इंडिया में इंट्रोड्यूस करा, बनवाना शुरू की ऐसे ज्वेलरी, अलग अलग ज्वेलरी इस टेक्निक से। इनामलिंग जो होती है उस प्रोसेस में ग्लास की एक थिन कोटिंग और लाइन अप्लाई की जाती है मेटल में। इस प्रोसेस को ही इनामलिंग कहते हैं। एंड नाउ कास्टिंग। मोल्ड बनाने की प्रोसेस को कास्टिंग कहा जाता है। इसमें आपकी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उस टाइम में राउंड, सर्कल, ओवल, रेक्टेंगल, पहले डिज़ाइन का पैटर्न सेलेक्ट किया जाता था और उसमें जो भी मटेरियल होता था उसको पोर किया जाता था, डाला जाता था, उसके ड्राई होने का वेट करते थे। जब वो ड्राई हो जाता था तो उसके बाद आगे की प्रोसेस शुरू की जाती थी और उस मोल्ड का यूज़ डिज़ाइन के अकॉर्डिंग किया जाता था। एंड नाउ लेट्स गेट टू नो द एंटीक ज्वेलरी इन इंडिया। फर्स्ट वन, गुलाबी मीनाकारी. Gulabi Minakari is one of the rarest craft in India. The art was brought to the city of Varanasi by Persian enamelists during the Mughal era around the early 17th century. गुलाबी मीनाकारी वन ऑफ द रेयरेस्ट क्राफ्ट है इंडिया में। ये अभी भी वाराणसी में प्रैक्टिस की जाती है। मुग़ल एरा के टाइम पे इस आर्ट को पर्शियंस ने इंट्रोड्यूस किया था वाराणसी में अराउंड 17th सेंचुरी में। The word Meena is the feminine form of the Persian word Meenu and means heaven. It refers to the azure color of heaven. Meenakari can be found popularly in three forms. Meena शब्द, मीना वर्ड फेमिनाइन फॉर्म है पर्शियन वर्ड मीनू का, जिसका मतलब हेवन होता है। और मीनाकारी जो है वो पॉपुलरली 3 फॉर्म्स में मिलती है, बनाई जाती है। एंड दीज आर, फर्स्ट वन, एक रंग खुला मीना, ओनली गोल्ड आउटलाइंस आर एक्सपोज्ड एंड अ सिंगल ट्रांसपेरेंट कलर इज़ यूज्ड। इसमें सिर्फ जो गोल्ड आउटलाइन होती है उनको एक्सपोज किया जाता है, अच्छे से हाईलाइट किया जाता है और बाकी में सिंगल ट्रांसपेरेंट कलर यूज़ किया जाता है। सेकेंड, पंचरंगी मीना, 5 कलर ऑफ रेड, वाइट, ग्रीन, लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू आर यूज। पंचरंग मीना में 5 तरीके के कलर यूज़ किए जाते हैं, जो हैं रेड, लाल, सफ़ेद, हरा, लाइट ब्लू, हल्का नीला, डार्क ब्लू, गाढ़ा नीला। थर्ड एंड द लास्ट वन, गुलाबी मीना, पिंक इज़ डोमिनेटेड कलर। इस गुलाबी मीना में जो पिंक कलर होता है वो सबसे डोमिनेटेड कलर होता है, इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है बनाने के टाइम पे। मीनाकारी फ्रॉम वाराणसी इज़ नोन फॉर इट्स सिग्नेचर पिंक कलर विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गुलाब रोज़। द बोल्ड, beautiful and bright pink jewelry is characterized by pink brush strokes or dusky rose pink on an applique white background or white enamel. The piece of art may take a month or to 6 for its completion depending upon its complexity. गुलाबी मीनाकारी को बनाते टाइम पिंक कलर का बोल्ड, ब्यूटीफुल, ब्राइट पिंक कलर्स यूज़ किए जाते हैं मोस्टली किसी वाइट या बेबी पिंक, लाइट पिंक बैकग्राउंड पे। और इसको बनाने में 1 से 6 महीने तक लग सकते हैं। ये चीज़ डिज़ाइन पे डिपेंड करती है कि वो कितनी कॉम्प्लेक्स है या कितनी सिंपल है। नाउ द मेकिंग प्रोसेस ऑफ गुलाबी मीनाकारी। स्टेप 1, क्राफ्टिंग अ सिल्वर मोल्ड। पहले स्टेप में सिल्वर मोल्ड तैयार किया जाता है। स्टेप 2, डिफरेंट कलर्स ग्लासेस आर यूज्ड फॉर डिफरेंट कलर्स। द पाउडर्ड ग्लास इज मिक्सड विद अ लिक्विड मेड ऑफ पोमीग्रेनेट seeds and water to give a shining surface. The craft is decorated by applying attractive colors. Step 2 में हर एक कलर के अकॉर्डिंग ग्लासेस यूज़ किए जाते हैं। अगर आपका पिंक कलर है तो पिंक ग्लास यूज़ किया जाएगा। उसके बाद ग्लास के पाउडर को लिक्विड में मिक्स किया जाता है और वो लिक्विड अनार के दानों से बना होता है और उसमें थोड़ा पानी ऐड किया जाता है एक शाइनी सरफेस बनाने के लिए। और इस क्राफ्ट को और भी डेकोरेटिव बनाने के लिए अलग अलग अच्छे कलर यूज़ किए जाते हैं। एंड नाउ सम रेफरेंस पिक्चर ऑफ गुलाबी मीनाकारी। नेक्स्ट वन, ताराकसी। दिस इज़ अ टाइप ऑफ सिल्वर फिलगिरी वर्क फ्रॉम कटक, अ सिटी फ्रॉम उड़ीसा, इज़ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। The highly skilled art form is more than 5,000 years old and is traditionally done by local artisans. The process is highly elaborate, using precision, patience, and skilled handwork apart from ingenuity and creativity of the artisan. ताराकशी को फिलगिरी नाम से भी जाना जाता है। ये कटक उड़ीसा में की जाती है, प्रैक्टिस करी जाती है। ये क्राफ्ट 500 साल पुरानी है, 500 ईयर्स ओल्ड पुरानी है। ये जो क्राफ्ट है वो लोकली जो आर्टिशंस हैं उड़ीसा के, कटक के, वही करते हैं, वहाँ पे बनती है। और इसकी जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही डिटेल्ड और एलेबोरेटेड होती है। नाउ द मेकिंग प्रोसेस ऑफ ताराकसी।
Step 1. The artist work with an alloy of 90% or more pure silver. जो आर्टिस्ट होते हैं वो 90% alloy या फिर उससे भी ज़्यादा प्योर सिल्वर के साथ काम करते हैं. The silver bricks are melted and drawn into wires of different gauges using a wire drawing machine. जो सिल्वर ब्रिक्स होती हैं उनको मेल्ट किया जाता है और उन्हें कन्वर्ट किया जाता है वायर के फॉर्म में अलग अलग थिकनेस में. द थिकनेस ऑफ द वायर इज़ डिटरमाइंड बाय द डिज़ाइन. जो वायर की थिकनेस होती है वो डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करती है, कितनी थिक रखनी है, कितनी थिन रखनी है. सिल्वर वायर ऑफ वेरियस थिकनेस आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एनी वन पीस. जो सिल्वर वायर होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्शन में किसी भी पीस की. और जो थिन वायर होते हैं उनको बहुत ही केयरफुली यूज़ किया जाता है मोड़ने में, ट्विस्ट करने में, क्योंकि वो बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं. सेकेंड स्टेप. आफ्टर द डिज़ाइन इज मैनुअली ड्रॉन ऑन पेपर. डिज़ाइन को मैनुअली पेपर पे ड्रॉ करने के बाद सिल्वर स्मिथ कर्ल्स एंड कट्स ऑफ द लिटिल पीसेस ऑफ फाइन सिल्वर वायर टू यूज़ इन हिज डिज़ाइन. जो आर्टिस्ट होते हैं वो सिल्वर वायर को डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कर्ल और कट करते हैं डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. थिकर वायर इज़ यूज टू मेक द फ्रेम एंड थिनर वायर आर यूज टू ऐड द डिटेल इनसाइड. जो थिकर वायर होते हैं उनको फ्रेम में डिटेलिंग के लिए यूज़ किया जाता है और जो थिनर वायर होते हैं उनका जो काफ़ी डिटेल्ड डिज़ाइन होती है उनको अच्छे से यूज़ किया जाता है उसमें. द फाइन वायर्स इज़ ट्विस्टेड एंड मोल्ड इनटू फाइन एंड एलेबोरेट डिज़ाइन. जो बहुत ही ज़्यादा फाइन होते हैं उन वायर्स को हम एकदम कंप्लीट डिटेलिंग, जहाँ पे बहुत ही फाइन डिटेलिंग की ज़रूरत होती है, हम वहाँ पे यूज़ करते हैं लोग. दीज आर फिटेड एग्जैक्टली इनटू द फ्रेम. ऑल द इंडिविजुअल पीसेस आर असेंबल्ड टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट. ये बहुत अच्छे से जो भी वायर होते हैं उनको अच्छे से फिट किया जाता है, उनकी फिटिंग काफ़ी अच्छी होती है फ्रेम में. उसके बाद जो पूरी डिज़ाइन होती है उसको अच्छे से असेंबल किया जाता है. स्टेप थर्ड. शोल्डरिंग इज डन बाई प्लेसिंग द पीस इनटू अ मिक्सचर ऑफ बोरेक्स पाउडर एंड वाटर, स्प्रिंकलिंग सोल्डरिंग पाउडर ऑन इट. जो प्रोडक्ट की सोल्डरिंग करी जाती है उनको बोरेक्स पाउडर और वाटर के मिक्स में रखा जाता है. उसके बाद स्प्रिंकलिंग सोल्डर पाउडर इनमें ऐड किया जाता है एंड देन प्लेसिंग इट अंडर द स्मॉल फ्लेम. उसके बाद इनको धीमी आंच पे रखा जाता है. दिस इंश्योर दैट द डिटेल ऑफ द डिज़ाइन विल स्टे इंटैक्ट. वो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो डिज़ाइन हमने बनाई है, जो आर्टिशंस ने बनाई है, वो अच्छे से इंटैक्ट हो गई है या नहीं हो गई है, इस प्रोसेस के बाद पता चल जाता है. स्टेप 4. क्लिनजिंग एंड पॉलिशिंग. थर्ड स्टेप कंप्लीट होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर फ्लेमिंग के बचता है उसको क्लीन किया जाता है और उसकी पॉलिशिंग करी जाती है. एंड नाउ फाइनली वंस द ऑब्जेक्ट्स आर रेडी, दे आर रेडी टू बी वॉश्ड, क्लीन, पॉलिश्ड एंड ड्राइड. The silver filigree is first immersed in a solution of dilute acid for cleaning, followed by polishing solution to get a perfect shine. After cleansing and polishing के बाद जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो रेडी हो जाते हैं फाइनल प्रोसेस के लिए. उनको और अच्छे से वॉश किया जाता है, क्लीन किया जाता है, पॉलिश करी जाती है. उसके बाद उनको ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है. जो सिल्वर फिलगिरी है उसको पहले डाइल्यूट एसिड के जो सोल्यूशन होता है उससे क्लीन करके उसके बाद उसकी पॉलिश करी जाती है, उसको फाइनल शाइन देने के लिए, फाइनल लुक देने के लिए. एंड नाउ सम रेफरेंस पिक्चर ऑफ ताराकशी ज्वेलरी. Next one, Thewa. It is a word from the local Rajasthani language which means setting. Thewa एक लोकल राजस्थानी वर्ड है जिसका मतलब सेटिंग होता है. It is a special art of jewelry making which involves fusing of intricate worked out gold seed on molten glass. ये बहुत ही स्पेशल आर्ट फॉर्म है ज्वेलरी की. इसमें जो इंट्रिकेट गोल्ड वर्क होता है उसको फ्यूजिंग के थ्रू मोल्टन ग्लास में सेट किया जाता है. नाथूलाल सोनी initiated this art in 1707. The secret of the craft has been passed over generation to Raj Soni's family. नाथूलाल सोनी जी ने इस क्राफ्ट को इनिशिएट किया था 1707 में और ये जनरेशन टू जनरेशन पास किया गया है, जनरेशन टू जनरेशन फॉलो किया गया है राज सोनी जी की फैमिली में. दे आर द ओनली फैमिली डूइंग थेवा वर्क इन 25+ कलर्स एंड ज्योमेट्रिक आर्ट इन प्रतापगढ़. इनकी फैमिली 25+ कलर में इस आर्ट फॉर्म को बनाती है, क्रिएट करती है. एंड नाउ द मेकिंग प्रोसेस ऑफ थेवा. स्टेप 1. 23 gold sheet is tapped by wood to tear out all the waves in the metal. धातु की मेटल की सारी तरंगों को, वेव्स को दूर करने के लिए 23 कैरेट शीट गोल्ड को लकड़ी से, वुड से टैप किया जाता है. स्टेप 2. सिल्वर वेव
Silver wires are joined and giving the exact shape depending on the design. सिल्वर वायर्स को ज्वाइन किया जाता है जो डिज़ाइन है उसको एग्जैक्ट शेप देने के लिए। स्टेप 3, शोल्डरिंग ऑफ द गोल्ड शीट एंड सिल्वर वायर। गोल्ड शीट और सिल्वर वायर को शोल्डरिंग की प्रोसेस के थ्रू ऐड किया जाता है। स्टेप 4, लाक इज फिल्ड ऑन द शोल्डर्ड थेवा पीस टू गिव द बेसमेंट ऑफ फॉर क्राफ्ट। लाक की फिलिंग की जाती है, थेवा की जो पीस बनाई जाती है सोल्डरिंग की प्रोसेस के थ्रू। स्टेप 5, कार्विंग ऑफ द डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द थीम। डिज़ाइन की कार्विंग करी जाती है थीम के अकॉर्डिंग। स्टेप 6, आफ्टर द कार्विंग इज़ डन द नेक्स्ट स्टेप इज़ ग्लास कटिंग विच हैज़ टू बी डन वेरी एक्यूरेटली। कार्विंग करने के बाद, डिज़ाइन की कार्विंग करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ग्लास की कटिंग का होता है। उसको बहुत ही एक्यूरेटली करने की ज़रूरत होती है क्योंकि ग्लास बहुत ही फ्रिजाइल होता है। स्टेप 7, आफ्टर द ग्लास फ्यूजिंग थेवा इज़ ऑलमोस्ट डन। ग्लास फ्यूजिंग के बाद थेवा की जो प्रोसेस वो ऑलमोस्ट डन हो जाती है। स्टेप 8, थेवा इज़ फिटेड विद द हेल्प ऑफ अ हैमर एंड इट्स रेडी टू बी अडॉर्न्ड। स्टेप 8 में जो थेवा की फिटिंग करी जाती है हैमर की हेल्प से, आफ्टर दैट जो फाइनल प्रोडक्ट है वो रेडी हो जाता है। Next one, Dhokra. Dhokra is a non-ferrous metal casting using the lost wax casting technique used for over 4,000 years and is still being used. The name Dhokra is coined after the tribe of Dhokra Dhamar who are settled in the central part of India. ढोकरा एक नॉन फेरस मेटल कास्टिंग टेक्निक को यूज़ करके बनाया जाता है। ये टेक्निक 4000 साल पुरानी है और ये अभी भी यूज़ की जाती है क्राफ्ट बनाने में, चीज़ें करने में। इस क्राफ्ट का ढोकरा नाम एक ट्रिब्यूट रखा गया है, दिया गया है ढोकरा धामरन को, हुआ जो कि सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में रहते हैं। एंड नाउ द मेकिंग प्रोसेस ऑफ ढोकरा। द बेसिक मोल्ड इज़ मेड विथ फाइन सैंड एंड क्ले। बेसिक मोल्ड प्रिपेयर किया जाता है सैंड और क्ले के साथ मिक्स करने के बाद। गोट एंड काऊ डंग और हस्क इज एडेड टू द प्रिंसिपल मटेरियल। गोट और काऊ डंग इसमें ऐड किया जाता है विद हस्क विच इज़ देन लेयर्ड विद प्योर वैक्स। बेसिक मोल्ड तैयार करने के बाद इसको लेयर किया जाता है प्योर वी वैक्स से। स्टेप 2, वैक्स थ्रेड्स आर देन प्रिपेयर्ड एंड wound around the clay mold until its entire surface is covered uniform। इसके बाद वैक्स के थ्रेड्स प्रिपेयर किए जाते हैं और उसको मोल्ड के चारों तरफ कवर किया जाता है उस थ्रेड से जब तक पूरा एंटायर यूनिफॉर्म एक पीस रेडी नहीं होता। स्टेप 3, द रनर्स आर फिक्स्ड विद अलाउ द मेटल टू फ्लो एंड अलाउ टू फिल द एरिया विद नो रेजिस्टेंस। द मॉडल इज कोटेड इन अ पेस्ट एंड लेफ्ट टू ड्राई। जो रनर होता है वो कांस्टेंट होते हैं तो वो मेटल को अलाउ करते हैं इजीली फ्लो करने को, इजी होता है और इजी होता है इसको फिल करने में। उसके बाद मोल्ड को कोटेड किया जाता है पेस्ट से और उसके बाद उसको ड्राई करने के लिए छोड़ दिया जाता है। द पोर्शंस आर रीटच्ड एंड द मेटिकुलसली सोर्स्ड एट द रिवर विच क्लीन सैंड टू गिव द प्रोडक्ट अ सॉफ्ट पॉलिश्ड लुक। उसके बाद कंप्लीटेड पोर्शन को रीटचिंग के लिए रिवर में ले जाया जाता है। उसके बाद उसको सैंड से क्लीन किया जाता है उसको एक सॉफ्ट पॉलिश्ड लुक देने के लिए। द प्रोडक्ट ऑफ ढोकरा आर्टिसन इज इन ग्रेट डिमांड इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट्स। अ सिंपल फिगर कुड टेक एनीवेयर बिटवीन ओवर 15 to 30 days टू मेक। जो ढोकरा क्राफ्ट है उसके जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही मार्केट में काफ़ी इन है और एक डिटेल प्रोडक्ट बनाने के लिए 15 से 30 दिन लगते हैं। Next one, Bhedri. Bhedri ware is a metal handicraft from Bidhar. It was developed in the 14th century CE. भिद्री फेयर एक मेटल हैंडीक्राफ्ट है जो कि विदर से है। ये 14th सेंचुरी CE में डेवलप हुआ था, शुरू हुआ था ड्यूरिंग द रूल ऑफ द बहामनी सुल्तान्स। उस टाइम बहामनी सुल्तान्स का राज था या वो रूल कर रहे थे। द टर्म भिद्री वेयर ओरिजिनेट फ्रॉम द टाउनशिप ऑफ विदर ड्यू टू इट्स स्ट्राइकिंग इनले आर्टवर्क। इट इज़ अ मल्टीपल step tedious process done manually
भिद्री वर्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट हैंडीक्राफ्ट ऑफ इंडिया। जो टर्म भिद्री वायर है वो ओरिजिनेट हुआ है वेदर से, और इसमें बहुत ही स्ट्राइकिंग इनले आर्ट वर्क होता है। और उसको मल्टीपल स्टेप में मैनुअली किया जाता है, एक एक करके एक एक स्टेप कंप्लीट किया जाता है। और भिद्री वर्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट हैंडक्राफ्ट है इंडिया का आज के टाइम में। एंड नाउ द मेकिंग प्रोसेस ऑफ भिद्री क्राफ्ट। स्टेप 1, अ मेटल मोल्ड इज़ यूज टू क्रिएट अ हॉलो मोल्ड। पहले स्टेप में मेटल मोल्ड को यूज़ किया जाता है एक हॉलो मोल्ड क्रिएट करने के लिए इन स्पेशल बिदर क्ले विच बाइंड्स वेल अलॉन्ग विद रेजिन एंड कैस्टर ऑयल। स्पेशल क्ले बिदर क्ले में, जो कि कैस्टर ऑयल और रेजिन से बहुत अच्छे से बाइंड होती है, अच्छे से मोल्ड क्रिएट होता है। हॉलो मोल्ड इज़ देन फिल्ड विद मोल्टन मेटल। उसके बाद जो हॉलो मोल्ड हमें मिलता है उसको मोल्टन मेटल से फिल किया जाता है, जो कि जिंक और कॉपर होता है। इन अ फ्यू मिनट द मेटल टेक्स द डिज़ायर्ड शेप। आफ्टर सम टाइम, या कुछ समय के बाद, कुछ मिनट के बाद, जो क्ले होता है वो डिज़ायर्ड शेप, जैसा शेप चाहिए होता है वैसा वो बन जाता है। क्ले मोल्ड इज़ ब्रोकन टू टेक आउट द मेटल पीस विच इज़ लेटर स्मूदन्ड बाय द फिलिंग। उसके बाद जो क्ले मोल्ड होता है उसको तोड़ के जो अंदर का मेटल की हमें मोल्ड मिलता है उसको निकाला जाता है और फाइलिंग करके उसकी सरफेस को स्मूथ किया जाता है। द कास्टिंग इज़ नाउ कोटेड विद अ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टू ऑब्टेन अ टेम्प्रेरी ब्लैक कोटिंग। उसके बाद कास्टिंग के स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन से जो कॉपर सल्फेट की होती है उससे टेम्प्रेरी ब्लैक कोटिंग बनाई जाती है। ओवर विद द डिज़ाइंस के ऊपर आर इच्ड फ्री हैंड विद द हेल्प ऑफ मेटल स्टाइलस, जो कि फ्री हैंड से करी जाती है विद द हेल्प ऑफ मेटल स्टाइलस। नेक्स्ट स्टेप सेकेंड, इन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ कार्विंग एंड इचिंग। अगले कार्विंग और इचिंग के स्टेप में द क्राफ्टमैन यूज स्मॉल चेसल टू इनग्रेव द डिज़ाइन ओवर द फ्री हैंड एचिंग। जो क्राफ्टमैन होते हैं वो स्मॉल चेसल्स को यूज़ करते हैं डिज़ाइन को और अच्छे से इनग्रेव करने के लिए, और ये पूरी प्रोसेस फ्री हैंड करी जाती है, कोई भी मशीन का इसमें यूज़ नहीं किया जाता है। फाइन वायर और फ्लैटन स्ट्राइप्स ऑफ प्योर सिल्वर आर देन केयरफुली हैमर्ड। उसके बाद जो फाइन वायर होते हैं और फ्लैटर्ड स्ट्राइप होते हैं प्योर सिल्वर वायर के, उसको हथौड़े से या किसी चीज़ से अच्छे से हैमर से किया जाता है इनटू दीज फाइन ग्रुप्स फ्री हैंडली। इस प्रोसेस को भी फ्री हैंड से ही किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मेटल स्टाइलस की हेल्प से। नेक्स्ट स्टेप थर्ड, ब्लैकिंग एंड फिनिशिंग। हेयर द भिद्री वेयर इज़ रेडी फॉर द फाइनल ब्लैकिंग प्रोसेस। उसके बाद सेकेंड स्टेप के बाद जो भिद्री वेयर होते हैं वो रेडी होते हैं फाइनल ब्लैकिंग प्रोसेस के लिए। और स्पेशल वेराइटी ऑफ सॉइल विच इज़ अवेलेबल ओनली इन द यूनिट पोर्शन ऑफ भिद्री फोर्ट इज़ यूज्ड। एक स्पेशल सॉइल यूज़ करी जाती है जो कि भिद्री फोर्ट में ही मोस्टली अवेलेबल होती है। इट इज़ फिक्स्ड विद द अमोनियम क्लोराइड and water to produce a paste which is then rubbed onto a heat भिद्री surface। इसके बाद अमोनियम क्लोराइड और वाटर से एक पेस्ट बनाया जाता है और उस पेस्ट को रब किया जाता है हीटेड भिद्री सरफेस पे। द पेस्ट सेलेक्टिवली डार्कन्स द बॉडी वेल इट डज नॉट अफेक्ट द सिल्वर इनले। जो ये पेस्ट होता है वो सिर्फ बॉडी को थोड़ा और डार्क करता है, बट इसका कोई भी इफेक्ट सिल्वर उस पर नहीं होता है, वो उसकी साइन वैसी ही रहती है। एंड नाउ द फाइनल स्टेप, एज अ फिनिशिंग टच ऑयल इज़ अप्लाइड टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिशिंग देने के लिए ऑयल को अप्लाई किया जाता है प्रोडक्ट पे टू डीपन द मैट कोटिंग को और अच्छे से डीपली लुक देने के लिए। द फिनिश्ड प्रोडक्ट अपीयर ब्लैक विद ब्रिलियंट सिल्वर इनले। जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो ब्लैक और बहुत ही अच्छी सिल्वर लाइनिंग जैसा दिखता है, बहुत ही आउटकम सुंदर आता है। नाउ सम रेफरेंस पिक्चर ऑफ भिद्री ज्वेलरी। Next one, temple jewelry is originated in the Chola and Pandya dynasties, which played an essential role in the cultural heritage of southern states in India, embossed with depiction of gods and goddesses from the temples in South India. These simple yet artful pieces of work are sculpted from gold and silver. टेम्पल ज्वेलरी चोला और पांड्या डायनेस्टी से शुरू हुआ था और ये बहुत ही एसेंशियल पार्ट प्ले करता है कल्चरल हेरिटेज में इंडिया के साउथ पार्ट में। ये एम्बोस ज्वेलरी होती है और उसमें मोस्टली डिपिक्शन होता है गॉड और गॉडेस का, और ये ज्वेलरी गोल्ड और सिल्वर से बनी होती है मोस्टली, और ये बहुत ही आर्टफुल और इंट्रिकेट डिज़ाइंस होती हैं इसमें।
ट्रेडिशनली नक्काशी इन हिंदी मीन्स कार्विंग। ट्रेडिशनली जो नक्काशी शब्द का मतलब होता है वो कार्विंग होता है। एंड नागाज इन द तमिल मीन्स इंट्रिकेट एंड ऑर्नामेंटल वर्क। और नागाज का मतलब होता है तमिल में इंट्रिकेट और ऑर्नामेंटल वर्क। हैज़ एग्जिस्टेड वर्क फ्रॉम एंशियंट टाइम्स थ्रू द 21st सेंचुरी। ये पुराने टाइम से अभी 21st सेंचुरी तक वैसे ही चला आ रहा है। ईच स्टेप इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ दीज ज्वेलरी पीसेज इज़ वेरी डेलिकेट, इंटेंस एंड इम्पॉर्टेंट। इस ज्वेलरी को बनाने में हर एक जो भी स्टेप किया जाता है, प्रोसेस फॉलो करी जाती है, वो बहुत ही डेलिकेट होती है, बहुत ही इंट्रिकेट होती है, इंटेंस होती है। और हर एक पार्ट में अच्छे से करना, ध्यान से रखना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस ज्वेलरी के लिए। Now the making process of temple jewelry. Step 1. A rough sketch of the design is drawn on paper and then sketched on the gold sheet. पहले एक रफ स्केच डिज़ाइन का बनाया जाता है पेपर में, उसके बाद इसको गोल्ड शीट पे अप्लाई किया जाता है। स्टेप 2. आफ्टर स्केचिंग out on the sheet of gold, the sheet is then hammered with the help of chisel and embossed from the back of the metal sheet using the embosser. आफ्टर स्केच के बाद जो गोल्ड शीट होती है उस शीट को हैमर से की हेल्प से चेजल किया जाता है और एम्बॉस किया जाता है बैक से और मेटल शीट पे एम्बॉसर की हेल्प से। स्टेप 3. The embossed piece is filled with natural resin by heating the sheet, followed by carving where the shaping of the design take place. जो embossed pieces होती हैं वो filled होती हैं नेचुरल रेजिन से और उसके बाद उनकी कार्विंग करी जाती है where the shaping of the design take place, जहाँ पे डिज़ाइन की शेपिंग शुरू होती है। द कार्व डिज़ाइन इज़ पॉलिश्ड एंड डेकोरेटेड बाई यूजिंग चेसल। जो कार्व डिज़ाइन होती है उसको पॉलिश किया जाता है और डेकोरेट किया जाता है चेसल्स की हेल्प से। देन द एक्सेस पोर्शन ऑफ द गोल्ड शीट इज़ कट। उसके बाद जो एक्सेस पोर्शन होता है गोल्ड का उसको कट किया जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द क्रूशियल स्टेप एज इवन अ सिंगल रॉन्ग कट वुड लेंड द इंटायर एफर्ट टू वेस्ट। ये बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस होती है मेकिंग की, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इसमें गलत हो गया तो जो इतने एफर्ट्स करें वो सारे वेस्ट हो सकते हैं। स्टेप 4. आफ्टर नक्काशी वर्क इज़ कम्प्लीट। नक्काशी के बाद जो काम होता है वो कंप्लीट हो जाता है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ क्लोजिंग द बैक साइड ऑफ द नक्काशी पीस बाय अ गोल्ड शीट टू ऐड स्ट्रेंथ टू द पीस। जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो बैक साइड को क्लोज करना होता है विद द हेल्प ऑफ गोल्ड शीट की हेल्प से, ताकि जो पीस को है वो और भी स्टिफ हो और स्ट्रेंथ अच्छे से हो, टूटे नहीं। Step 5. After the closing is done, the rough edges are smoothened followed by a cleansing and polishing. प्रोडक्ट बनने के बाद उसकी जो रफ़ एजेस होती हैं उसको स्मूथ करने के लिए उसकी क्लिनजिंग करी जाती है और पॉलिशिंग करी जाती है। नेक्स्ट वन, कुंदन। कुंदन इज़ अ फॉर्म ऑफ ज्वेलरी मेड फ्रॉम गोल्ड। कुंदन एक ज्वेलरी की फॉर्म है जो कि गोल्ड से बनाई जाती है। द टर्म कुंदन इटसेल्फ मीन्स हाईली रिफाइंड प्योर गोल्ड। कुंदन शब्द का मतलब प्योर गोल्ड होता है। द गोल्ड इज़ बीटन एंड बिल्ट इनटू द डिजायर्ड शेप फॉर स्टोन सेटिंग। जो गोल्ड होता है उसको बीट किया जाता है और शेप दिया जाता है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। सिंस 24 कैरेट आर अ लिटिल सॉफ्टर सो अ कम्प्लीट डिज़ाइन पीस कैन नॉट बी मेड फ्रॉम इट। जो 24 कैरेट गोल्ड होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो उससे ज्वेलरी की डिज़ाइन नहीं बनाई जा सकती जैसी हमें चाहिए। सो ओनली द जड़ाई पार्ट इज़ मेड इन 24 कैरेट विच इज़ अल्टीमेटली नोन एज कुंदन। तो इसीलिए जो जड़ाई का पार्ट होता है सिर्फ उसमें 24 कैरेट गोल्ड यूज़ किया जाता है और उसी को कुंदन कहा जाता है, उसी को हम कुंदन जानते हैं। नाउ मेकिंग प्रोसेस ऑफ कुंदन। स्टेप 1. फाड़ या गड़ाई। The gold is beaten into the stripes cut in shape to create the basic foundation of the jewelry. इस प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप में गोल्ड को बीट किया जाता है और शेप दिया जाता है बेसिक फाउंडेशन का ज्वेलरी का। द फ्रेमवर्क इज़ केमिकली वॉश टू क्लीन ऑफ एनी इम्प्योरिटीज़। उसके बाद इसको फ्रेम को वॉश किया जाता है सारी इम्प्योरिटीज़ से क्लीन करने के लिए। स्टेप टू खुदाई। नेक्स्ट सर्फेस क्रिएटेड इज़ फर्दर मोल्डेड इनटू डिज़ाइन एंड पैटर्न। जो नेक्स्ट में सरफेस जो होती है उसको डिज़ाइन और पैटर्न के अकॉर्डिंग मोल्ड किया जाता है। द गोल्ड फॉइल्स आर एडेड ऑन अ प्रोसेस कॉल्ड लाक फिलिंग टू क्रिएट अ स्टर्डी फ्रेम। लाक फिलिंग की प्रोसेस के द्वारा गोल्ड फिलिंग को इसमें ऐड किया जाता है एक स्टर्डी फ्रेम को बनाने के लिए। स्टेप 3. मीनाकारी। द गोल्ड कैन नाउ बी कलर्ड विद एनी नेचुरल कलर बाय एन आर्ट प्रोसेस कॉल्ड मीनाकारी।
ये प्रोसेस ऑप्शनल होता है, ये थर्ड स्टेप जो है वो ऑप्शनल है। अगर आपको डिज़ाइन में कलर ऐड करना है तो आप मीनाकारी की प्रोसेस ऐड कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, सच ही ऑप्शनल है टोटली। स्टेप 4, जड़ाई। फॉर सफिशिएंट ग्रिप ऑफ प्रीशियस स्टोब्स लाइक पोल्की एंड रूबीज़, पोल्की और रूबीज़ स्टोब्स को प्रीशियस ग्रिप देने के लिए, अच्छी ग्रिप देने के लिए जड़ाई बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। इट इन्वॉल्व्स प्लेसिंग अ गोल्ड foil between mount and stone to create a secure setting while enhancing the stone beauty when seen। इस प्रोसेस को करने के लिए जो गोल्ड फॉइल है उसको माउंट के अंदर, मोल्ड के अंदर डाला जाता है अच्छे से, ताकि जो जेमस्टोन्स जो भी यूज़ हों वो अच्छे से सिक्योर हों, गिरे नहीं, बहुत ही स्टिफी लुक आए। And finally, step 5, any excess gold is now removed and final polishing called chilai is applied to complete the finishing। सारी जो एक्सेस गोल्ड होती है उसको रिमूव किया जाता है, उस प्रोसेस को छिलाई कहते हैं, और फाइनल फिनिशिंग इसमें कम्प्लीटली करी जाती है। सम रेफरेंस पिक्चर ऑफ कुंदन ज्वेलरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो और कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके मेरे चैनल को, मेरे कंटेंट को, मेरी वीडियोज़ को बहुत सारा प्यार दें।